So today our topic is the Jai-Trump Summit shadow boxing on Iran. That means shadow boxing means indirectly war with diplomacy, with negotiation. So here I noticed some point you can check out from Risky Witch to China as Iran's anchor. So hey everyone, welcome back to the Curious Mind, and I'm hoping you are doing fantastic and super fantastic, and in the same way I'm doing great. I'm doing fantabulous too. So now, as you know, whenever I come, so I just bring some topic, some news article, and here I just find some vocabulary, some phrase to make you understand. Okay, so let's move on, and please, if you like it, so please comment it, please. I'm just requesting. It's my humble request. Okay, so let's move on our difficult vocabulary from the Jai Trump Summit shadow boxing on Iran. So the first vocabulary is summit. Without any delay, we will start now. So summit means a high level meeting between leaders or countries. शिखर सम्मेलन को हम लोग बोलते हैं summit. How could you make sentence with this? दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में भाग लिया. The two nations attended an important summit. हिंदी पढ़ूंगी फिर इंग्लिश पढ़ूंगी. ओके. The next is शिखर सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित था. The summit focused on global security issues. Next vocabulary is intervention. Intervention means the act of becoming involved in a situation to change it. हस्तक्षेप मतलब ऐसे एक्ट करना कि अगर हम किसी सिचुएशन में आएंगे तो चेंज कर देंगे. हस्तक्षेप, इंटरवेंशन. हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? चीन ने कूटनीति हस्तक्षेप की पेशकश की. चाइना ऑफर्ड डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन. नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप ने संघर्ष को रोका. इंटरनेशनल इंटरवेंशन प्रिवेंटेड कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट इज डिसएंगेज. डिसएंगेज मीन्स टू विथड्रॉ और सेपरेट फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट. अलग होना, पीछे हटना. डिसएंगेज, ये दिख भी रहा है, एंगेज मतलब आना, डिसएंगेज मीन्स पीछे हटना. सेंटेंस वुड बी द कंट्री डिसाइड टू डिसएंगेज फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट. देश ने संघर्ष से अलग होने का निर्णय लिया. द कंट्री डिसाइड to disengage from the conflict. Next is troops were orders to disengage peacefully. सैनिकों को शांतिपूर्वक पीछे हटने का आदेश दिया गया. Okay, and the next vocabulary is geostrategic. Geostrategic, that means related to political and strategic importance of geography. भू राजनीतिक रणनीति. जो भी हमें ज्योग्राफी से रणनीति करनी होती है, रणनीति करनी होती है, उसे बोलते हैं हम geostrategic. How could you make sentence with this? Iran holds geostrategic importance in Asia. एशिया में ईरान का भू राजनीतिक महत्व है. नेक्स्ट इज द रीजन हैज मेजर जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू. इस क्षेत्र का बड़ा रणनीतिक महत्व है. द रीजन हैज मेजर जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू. नेक्स्ट इज असिमेट्रिक. असिमेट्रिक, दैट मीन्स अनइक्वल और अनइवन इन स्ट्रेटेजी और पावर. विषम असमान चीजों को बोलते हैं असिमेट्रिक. जैसे सिमेट्रिक मतलब समानता, सो असिमेट्रिक मीन्स डिफरेंट, अनइक्वल. How could you make sentence with this? Iran adopted an asymmetric strategy. ईरान ने विषम रणनीति अपनाई. Iran adopted an asymmetric strategy. Next is asymmetric warfare is difficult to predict. विषम युद्ध का अनुमान लगाना कठिन होता है. Asymmetric warfare is difficult to predict. Next word is chokehold. Chokehold, that means strong control over something important. किसी भी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पकड़ होती है, नियंत्रण होता है, उसे हम लोग बोलते हैं chokehold. Okay, next sentence would be Iran has chokehold on the Strait of Hormuz. Hormuz जल मध्यस्थ पर ईरान की मजबूत पकड़ है. मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे ईरान का ज़्यादा मजबूत है पकड़ है. ईरान हैज chokehold on the Strait of Hormuz. Next sentence is capitulate. Capitulate. Capitulate means to surrender or stop resisting. Capitulate means समर्पण करना. कि किसी चीज को हम लोग सरेंडर करते हैं उसे बोलते हैं capitulate. 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 How could you make sentence with this? Iran refused to capitulate under pressure. ईरान ने दबाव में समर्पण करने से इनकार कर दिया. Iran refused to capitulate under pressure. सेना ने आसानी से समर्पण नहीं किया. The army did not capitulate easily. The army did not capitulate easily.
नेक्स्ट इज डिफांस. डिफांस मीन्स अवज्ञा, विरोध करना. ओपन रेजिस्टेंस और रिफ्यूजल टू ओबे, मतलब किसी भी आज्ञा को रिफ्यूज कर देना. ओपन रेजिस्टेंस बताना मतलब कि बिल्कुल विरोध करना, उसे बोलते हैं डिफांस. हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? द नेशन शोड डिफेंस अगेंस्ट सैंक्शंस. देश ने प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध दिखाया. सैंक्शंस दैट मीन्स इकोनॉमिक, जब रिस्ट्रिक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सैंक्शंस. ओके, प्रतिबंध जो लगा है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी स्टूडेंट्स एक्ट इन डिफेंस ऑफ अनफेयर रूल्स. छात्रों ने अनुचित नियमों के विरोध में कार्य किया. स्टूडेंट्स एक्ट इन डिफेंस ऑफ अनफेयर रूल्स. नेक्स्ट इज कंसेशंस. कंसेशंस. कंसेशंस मीन्स समथिंग गिवन ऑफ इन ऑर्डर टू रीच एग्रीमेंट. रियायतें. रियायतें मतलब क्या होती है? छूट. छूट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंसेशंस. कंसेशन. हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? द टॉक डिमांडेड इकोनॉमिक कंसेशंस. वार्ता ने आर्थिक रियायतों की मांग की गई. नेक्स्ट इज बोथ साइड्स मेड कंसेशंस फॉर पीस. शांति के लिए दोनों पक्षों से रियायतें दी. बोथ साइड्स मेड कंसेशंस फॉर पीस मतलब कि दोनों शांति के लिए दोनों पक्षों ने छूट दी, रियायतें दी. मतलब क्या कि चलो ठीक है, बातें करते हैं, देखते हैं कुछ मतलब बदल जाए और रुक जाए. एंड नेक्स्ट इज मीडिएशन. मीडिएशन दैट मीन्स एक्ट ऑफ हेल्पिंग टू साइड रीच एग्रीमेंट. मध्यस्थता, जो बीच के जो होते हैं, जो दोनों को बैलेंस करते हैं, उसे बोलते हैं मीडिएशन. So sentence would be China offered mediation between nations. चीन ने देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की. China offered mediation between nations. Next is mediation helped avoid war. मध्यस्थता ने युद्ध टालने में मदद की. Mediation helped avoid war. Next is transactional. Transactional that means focused mainly on benefits and exchanges. लेन देन आधारित और वहाँ पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा बेनिफिट्स पे, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजेक्शनल. ट्रांजेक्शनल में बेनिफिट पे ध्यान दिया जाता है और वहाँ पे चेंज किया जाता है, मतलब बेनिफिट के साथ हम लेन देन का बात करते हैं. सेंटेंस वुड बी द लीडर फॉलोड अ ट्रांजेक्शनल अप्रोच. नेता ने लेन देन आधारित दृष्टिकोण अपनाया. The leader followed a transactional approach. Next is लेन देन आधारित कूटनीति में विश्वास की कमी होती है. Transactional diplomacy often lacks trust. Transactional diplomacy often lacks trust. जो ट्रांजेक्शनल डिप्लोमेसी होती है, लेन देन आधारित जो कूटनीति होती है, उसमें हमेशा लैक ट्रस्ट होती है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रोलियो. एम्ब्रोलियो दैट मीन्स अ कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, हम लोग बोल सकते हैं उसे जटिल स्थिति, उलझन को. एम्ब्रोलियो. 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 हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? द मिडल ईस्ट एम्ब्रोलियो वॉरिड ग्लोबल लीडर्स. मध्य पूर्व की जटिल स्थिति ने विश्व नेताओं को चिंतित किया. पॉलिटिकल एम्ब्रोलियो डिलेड डिसीजंस. राजनीतिक उलझन ने निर्णयों में देरी की. पॉलिटिकल Embryo delayed decisions. I hope it's clear now. Now let's move on to phrase and idiom, which is important for us. So the first is off-ramp, and even you can see some picture and you feel fascinating with this. I'm hoping like that, and I can sure about it. So the first our phrase is and idiom is off-ramp. That means a way to escape from. देखिए, phrase और idiom दोनों अलग होते हैं, लेकिन मैंने इसमें साथ में इसीलिए लिखा क्योंकि हमारा मतलब है कि बस phrase मिल जाए या फिर idioms मिल जाए. Right? Okay, so let's move on. So first idiom is off-ramp. That means a way to escape from a difficult situation. बच निकलने का जो रास्ता होता है बोलते हैं off-ramp. So sentence would be diplomacy can provide an off-ramp from war. मतलब कूटनीति युद्ध से निकलने का रास्ता दे सकती है. मतलब बातचीत जो होते हैं स्मार्ट वे में, जो डिप्लोमेसी कहते हैं उसको, वो क्या कर सकता है? हमें प्रोवाइड करा सकता है युद्ध से निकलने का रास्ता. Off-ramp from war. Provide an off-ramp from war. Next is shadow boxing. That means indirect conflict or political tension without direct fight. ये क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो द्वंद्व होता है, जो युद्ध होता है, वो इनडायरेक्ट किया जाता है. ये पॉलिटिकल टेंशन जो होती है बिना फाइट की होती है, मतलब परोक्ष संघर्ष, अप्रत्यक्ष टकराव समझिए. सेंटेंस वुड बी द समिट बिकेम अ फॉर्म ऑफ शैडो बॉक्सिंग. शिखर सम्मेलन अप्रत्यक्ष टकराव
का रूप बन गया. द समिट बिकेम अ फॉर्म ऑफ शैडो बॉक्सिंग. द नेक्स्ट इज हार्ड बॉल स्ट्रेटजी. दैट मीन्स अ वेरी एग्रेसिव अप्रोच. कठोर जो रणनीति होती है, अप्रोच होते हैं जो कठोर, उसको बोलते हैं हार्ड बॉल स्ट्रेटजी. सेंटेंस वुड बी चाइना एडॉप्टेड अ हार्ड बॉल स्ट्रेटजी इन नेगोशिएशन. चाइना ने वार्ता में कठोर रणनीति अपनाई. नेगोशिएशन मतलब वार्ता. तो चाइना एडॉप्टेड अ हार्ड बॉल स्ट्रेटजी इन नेगोशिएशन. चाइना ने जो भी है वार्ता में कठोर रणनीति अपनाई. नेक्स्ट इज रेज द एंटी. रेज द एंटी दबाव बढ़ाना, दाव बढ़ाना. टू इंक्रीज प्रेशर और डिमांड, जो भी अपना डिमांड्स बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, टू इंक्रीज, उसको बोल सकते हैं रेज द एंटी. लाइक समवन अगर कोई मतलब कुछ ज्यादा बोल रहे हैं तो वी कैन से लाइक दैट आर यू जस्ट रेजिंग द एंटी. मतलब कि आप प्रेशर ही बढ़ा रहे हैं, लाइक दैट. सो सेंटेंस वुड बी ईरान रेज द एंटी ड्यूरिंग नेगोशिएशन. ईरान ने वार्ता के दौरान दबाव बढ़ा दिया. ईरान रेज्ड द एंटी ड्यूरिंग नेगोशिएशन. नेक्स्ट वुड बी कार्व अ रोल. Carve a role, that means to create an important position for oneself. महत्वपूर्ण भूमिका बनाना, एक important position बनाना है लेकिन सिर्फ खुद के लिए, है ना, oneself. Carve a role. Sentence would be China wants to carve a role as mediator. चाइना जो है मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका बनाना चाहता है. देख रहे हो, बहुत चालू है. China wants a carve a role. Carve a role, that means as a mediator. Mediator के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता है. Okay, so let's move on our some powerful lines for essay, for discussion. Even you can include for your writing skills and speaking skills too. And even you can understand the whole news article within some sentences. Okay, so let's move on. And these lines. The first is diplomacy often succeed where military power fails. कह रहे हैं जहाँ सैन्य शक्ति असफल होती है वहां कूटनीति अक्सर सफल हो जाती है. डिप्लोमेसी often succeeds where military power fails. यहाँ पे यही चल रहा है ना. The next is geopolitics is driven not only by power but also by strategic interests. भू राजनीतिक केवल शक्ति से नहीं बल्कि रणनीति हितों से भी संचालित होती है. Geopolitics is driven not only by power but also, देखिए, is driven मतलब चलती है, संचालित होती है, not only by power but also by strategic interest. जो होते हैं ना स्ट्रेटेजिक रणनीति, उससे भी चलती है, हितों से, रणनीतिक हितों से, यानी कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज ग्लोबल पीस रिक्वायर्स डायलॉग, पेशेंस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट. जो ग्लोबल पीस होती है, वैश्विक जो शांति होती है, और उसके लिए रिक्वायर्स होती है, डिमांड्स होती है कि मतलब जो डायलॉग है, धैर्य है और जो आपसी विश्वास है वो बना रहे, है ना. तो वैश्विक शांति के लिए संवाद यानी कि डायलॉग, एंड धैर्य यानी कि पेशेंस, एंड आपसी विश्वास यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट आवश्यक है. Okay, I hope it's clear now, and let's move on the news article. There we can talk about with some segregation, and then we can understand whole news article within some minute. So let's move on there. Okay, well, so today, let me check there. Where can I start? So finally, okay. So as you know, like today we are looking at a summit that could change the world order. The proposed meeting between Xi Jinping and, see here I'm using Xi Jinping, sorry, Xi Jinping. I think एक side it means Xi Jinping and Donald Trump in Beijing. While the meeting in China, the real ghost at the table is Iran. Real ghost at the table, that means कि ईरान हमारा सबसे इसमें का मेन गोल है ना. With tensions rising between Washington and Tehran, Beijing is holding a very powerful hand. So let's break down the layers of the diplomatic shadow boxing. So the first segment would be the historic parallel 1972 versus 2026. मैं इसको पढ़ के बताती हूँ. ओके, सो द आर्टिकल मेक्स अ फैसिनेटिंग कंपैरिजन. इट पॉइंट्स बैक टू द हिस्टोरिक 1972 निक्सन माओ समिट व्हिच चेंज्ड द कोल्ड वॉर फॉरएवर. टुडे द वर्ल्ड इज वाचिंग टू सी if a Xi-Trump meeting can achieve something similar. However, the context is different. Today, the flashpoint is West Asia and the Strait of Hormuz. This narrow waterway is the lifeblood of global energy, and any tension there dominates the summit's agenda. देखिए, बोला जा रहा है कि historical parallel, that means
ये वही चीज़ है जो पिछली बार हुआ था, वही दोहराया जा रहा है कि जब जब निक्सन थे प्रेसिडेंट फ्रॉम द कहाँ के कहाँ के थे, हाँ भाई यूएस के थे, एंड माओ इज फ्रॉम चाइना। तो वहाँ पे भी ऐसे हुआ था कोल्ड वॉर। तो वहाँ पे जो कोल्ड वॉर हुआ था तो उसको मतलब चेंज कर दिया गया था बात करके। तो कहा जा रहा है कि क्या वही पैरेलल चीज़ें फिर से आई है। तो कहा जा रहा है कि हाँ वही आई है, हम लोग कोल्ड वॉर को फॉरएवर के लिए फिर से स्टॉप करेंगे। लेकिन फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पे टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे हमारा वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है और स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, बस यही बोला जा रहा है। एंड द नेक्स्ट सेगमेंट वुड बी चाइना एज ईरान्स इकोनॉमिक लाइफलाइन। Like, why does China have so much power in this conversation? Because it is Iran's principal economic partner. Reports suggest China is purchasing over 80% of Iran's oil export. That's why China is like becoming, a mediator for this war. So this is not just a trade; it is a strategic shield. By buying this oil, China provides Tehran with the strategic resilience to like withstand US sanctions. This makes China the ultimate mediator or the ultimate obstacle for US interests in the region. बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है ना जो यूएस का जो सैंक्शंस है, जो रिस्ट्रिक्शन है, उसके साथ स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस किया जा रहा है। और जो चाइना है इसमें चाहता है कि बना ही रहे अल्टीमेट मीडिएटर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मतलब 80% जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो वहीं से कर रहा है, ईरान से, है ना। सो द नेक्स्ट सेगमेंट वुड बी द आर्ट ऑफ द बार्गेन, concessions and crisis. Let's talk about some रियायतें और crisis here. So Beijing knows its value. The article suggests that China might use the Iran crisis as a bargaining chip. They might say to the US, we can help establish Iran, but what will you give us in a return? So these concessions could be on tariffs and succession, reducing the trade war pressure, technology restrictions, easing the bans on China's technology firms, and Taiwan negotiating on long-standing regional sensitivities. It is a classic case of energy geopolitics being used for broader strategic balancing. Okay, let's move on to segment 4. So, global challenges and implications. But this shadow boxing has a real world consequence for everyone, including India. First would be energy volatility. Any escalation in West Asia means oil prices go up, affecting our inflation. And the second, trade routes. Prolonged tension in the Strait of Hormuz threatens international maritime security. जो समुद्री रूट्स होते हैं वहाँ पे टेंशन बढ़ा सकता है। वीकनिंग मल्टीलेटरिज्म, दैट मीन्स इफ द यूएस एंड चाइना ओनली केयर अबाउट देयर ओन राइवलरी, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रेटेजी स्टेबिलिटी बिकम वीकर। अगर यूएस चाइना सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब जो होता है ना अपने लिए मतलब कंपटीटर बना रहेगा, तो हमारा जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, स्ट्रेटेजिक जो स्टेबिलिटी है, वो सब वीक हो जाएगी, राइट। सो I hope it's clear now. So let's talk about some conclusion to understand in a clear way. So in this era of great power rivalry, the US-China relationship is the most important engine driving global events. So from energy security to trade routes, the Beijing summit will set the tone for the rest of 2026. I hope it's clear now, and as I say every single time whenever I come here, I hope you enjoyed as much I did. Till then, bye. Keep learning, keep coming, and understanding this global shift is what turns an aspirant into a diplomatic. And be happy, stay blessed. Okay? Till then, bye. And keep comment, please.